I told you about for a bar magnet, students. I told you very clearly that you have the pole strength of north is plus m, south is minus m, students. Okay. Every bar magnet has a magnetic dipole moment, students. The way you have it for electric dipole moment, students. If in case if I happen to go for electric dipole moment, students, अगर तुम्हें पता होगा electrostatics में तुमने पढ़ा होगा. Students, minus q. 2 plus q is the direction of electric dipole moment, students. So these are two charges equal in magnetic opposite in direction. So p bar is equal to q, into 2l, and its unit is coulomb meter. So likewise, identically, अगर मैं bar magnet के लिए देखता हूँ students, if I have a north and if I have a south, this is north and this is south. South is of strength minus m, north is of strength plus m. The distance between south and north, I'll consider will be 2l. And being a vector quantity, students, being a vector quantity, magnetic dipole moment is equal to strength of any one pole into distance between the two poles. Students, अगर तुम ध्यान से टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो उन्होंने यहाँ पे QM लिखा है. Students, they have written as QM in this case. Into 12 they have written, लेकिन मैं M लिख रहा हूँ. यानी you can, क्योंकि ये Q stands for charge. यहाँ पे magnetic dipole moment is a product of pole strength into distance. What exactly the unit of this? The unit of this will be equal to ampere meter into meter, so ampere meter square. Is it a scalar or it's a vector? तुम लिखोगे magnetic dipole moment is a vector. Now if somebody asks what is the direction of magnetic dipole moment? Direction कहाँ से कहाँ? Students, direction is from where to where? Anybody knows the direction of magnetic dipole moment, students? इसका direction कहाँ से कहाँ होगा, students? Do you know it? Students? Direction of magnetic dipole moment कहाँ से कहाँ होगा? कोई बता सकता है? तो exactly तुम्हें देखना है सर, electric dipole moment का भी direction कहाँ से कहाँ है? From minus q to plus q. Am I getting it? तो यहाँ पे भी तुम्हारा direction क्या है? From south to north. That is from where to where? From south to north, यानी minus m to plus m. क्या ये clear हुआ, students? Yes. ये ध्यान में रखना, students. No, keep in mind. Now, when I speak about the formula for magnetic field intensity, students, magnetic field intensity is defined as the ratio of magnetic force on a given strength of pole. So it's F by small m. Students, it's a force of magnetism acting on a given pole. यानी सपोज, ध्यान से सुनना, अगर सपोज मैंने एक मैग्नेट लिया है, उसका एक सराउंडिंग रीजन है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. एग्रीड? अगर सपोज मैंने कोई दूसरा मैग्नेट लिया है जिसको मैं नाम दूंगा, if in case if I happen to consider, if I happen to give that other magnet, अगर सपोज मैंने इसका साउथ सामने रखा, तो मुझे बताओ क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर ये जो मैग्नेट है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेट है वो क्या बनता है सर? वो बनता है सोर्स. इफेक्ट इस पे हो रहा है ना. अभी देखो मैंने साउथ को नॉर्थ की तरफ रखा है, तो इसका स्ट्रेंथ क्या है? माइनस एम. तो क्या ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है. अभी मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगा है? व्हाट्स द रीजन फॉर दिस मैग्नेटिक फोर्स? तो तुम्हें ये बोलना है कि सर आपने जो छोटा सा मैग्नेट है वो बड़े वाले के फील्ड के अंदर रखा है. समझ में आ रहा है? Exactly the way you have learned in electrostatics. So if I take a charge plus Q, it has its own region called electric field. If I take any other charge into its vicinity, either it will have a force of attraction or force of repulsion. तो अगर तुमने पढ़ा होगा what is electric field intensity का formula क्या है? Electrostatic force acting on charge. Electrostatic force acting on charge. तो वैसे ही जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज,
तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहने से इट्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पोल स्ट्रेंथ। ये एग्जैक्टली एनालॉग जा रहा है इन करस्पॉन्डेंस। तभी आगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका स्ट्रांग होगा उसका मैग्नेटिज्म भी स्ट्रांग होगा। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स एवरीवन? यस सर। ना मैं अगर इसका यूनिट दूं तो क्या होगा? तुम लोगों से सिंपल, इसका यूनिट तो न्यूटन है तो आप न्यूटन तो डालोगे। ये क्या है सर? स्ट्रेंथ ऑफ पोल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोल? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोल? एम्पियर मीटर है, तो सर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना? ये इसका यूनिट आ गया। तुरंत तुम बोलोगे सर 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 रुको रुको रुको, लास्ट लेक्चर में तो आपने कुछ दूसरा यूनिट दिया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। आपने कुछ वेबर मीटर स्क्वायर इनवर्स बोला था ना? क्या नहीं बोला? मैंने बोला है। और टेस्ला एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये सारे यूनिट्स बोले, क्यों नहीं बोला मैंने? ये यूनिट क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने नहीं दिया था। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आता है? बाय एनालॉग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या इतना क्लियर है सबको? Yes. स्टूडेंट्स, इज द ऑडियो एंड वीडियो फाइन विद ऑल ऑफ यू ऑल? सबको ऑडियो वीडियो सही तरीके से दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, यस sir. सर। फाइन। अभी एग्जाम्स है कल, दैट इज व्हाई द स्ट्रेंथ इज 23, अदरवाइज इट्स ऑल द टाइम 20 एंड लेस देन 20, 18, 19 एट टाइम्स 20 को शायद क्रॉस किया नहीं अभी तक, पहली दफे 20 से ऊपर क्रॉस किया है। यानी कुछ ऐसे सैंपल्स आए हैं जो आज तक लेक्चर अटेंड नहीं करते। Now students, we go with respect to your formula for force. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मुझे तो ये प्रथमेश पटेल पता नहीं आज तक कभी जिंदगी में आया नहीं है। क्या करो? एडमिट करो स्टूडेंट्स प्रथमेश पटेल को। हाँ स्टूडेंट्स, आया ना? कर दो सर, कर दो। हाँ सर, ऐसे क्या करते हो? एग्जाम से एडमिट करो ना, बस कर लिया। ये दिस इज प्रथमेश पटेल। क्या बात है प्रथमेश पटेल, वेलकम। तेरे लिए I was waiting for so long time. Prathamesh, are you there? I was waiting for you only. लेकिन वो हर्षदर्श जी ने बोला कि नहीं सर शुरू करो, मुझे कल के पेपर में फुल मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, तो आप शुरू कर दो। तो हर्ष की वजह से मैंने शुरू कर दी। Students, now let us go for magnetic force. Students, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Anybody who can know, tell me about the Coulomb's force का फॉर्मूला? हाँ स्टूडेंट्स, anybody knows Coulomb's force? जल्दी। 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. तो वैसे ही what is the formula for magnetic force? So magnetic force is a force between, ध्यान से सुनना, it's force between two magnets, force of two magnets. अगर ये नॉर्थ एक मैग्नेट का नॉर्थ है दूसरे का साउथ है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, they are placed at distance r. अगर एक का नॉर्थ है दूसरे का भी नॉर्थ है तो रिपेल भी हो सकता है, तो there is a force of attraction and repulsion. तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे दोगे? स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स इज μ0/4 पाई। अगर सपोज मैंने दो मैग्नेट दिया है, दोनों का स्ट्रेंथ अगर मैं सेम रखता हूँ, m1 m2 का दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन they are at a distance r apart from each other, तो कहना है this is m² upon r². What is this small m? देखो प्लीज ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये जो हाथी वाला m है ना, ये जो हाथी वाला m मैं लिख रहा हूँ ना, हाथी वाला m, ये स्मॉल m, ये पोल स्ट्रेंथ है। कैपिटल M जब भी मैं लिखूंगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है और पोल स्ट्रेंथ क्या है। इसका यूनिट हमेशा एम्पियर मीटर होगा, इसका यूनिट हमेशा एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। प्लीज स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल। अगर नॉर्थ होगा तो प्लस एम होगा, साउथ होगा तो माइनस एम। ये किसके हिसाब से जाता है? एनालॉग विद इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कैसा? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यस, व्हाट इज म्यू नॉट? What is mu naught? What is mu naught is? Permeability of free space is mu zero. जैसे कि वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था स्टूडेंट्स, यहाँ पे mu zero, यहाँ पे it's mu zero आया। What exactly mu zero का मैग्नीट्यूड क्या होगा? What is mu zero? तो ऐसे mu zero का मैग्नीट्यूड will be equal to what? It's 4 pi into 10 raised to -7। अब इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? Can you tell me what exactly the unit is? तो कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा सर, इसको देखेगा, आराम से देखना। अभी इसको मैंने निकाल दिया। फोर्स किसमें होता है? न्यूटन में। डिस्टेंस यहाँ पे आएगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ पोल, और स्ट्रेंथ ऑफ पोल इज ऑलवेज इन एम्पियर मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? Yes. एग्रीड? सो नाउ कैन यू गिव मी द Yes. आंसर? व्हाट इज 4 पाई? 4 पाई into 10 to my, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट? तो बता सकता है? व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर इनवर्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? म्यू नॉट का यूनिट आया ना? Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक बनवाना प्लीज। अभी स्टूडेंट्स कल अगर एग्जाम है तो ज्यादा प्लीज थोड़ा फोकस करो अभी और रिप्लाई करो, जो आज तक तुम लोग कभी करते नहीं आए हो लेक्चर्स में। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत मुझे तभी का तभी चुप रखो कि नहीं सर मुझे ये वापस बताओ, ये कैसे आया, कहाँ से आया। अगर स्टडीज को इजी बनाना है तो प्लीज, आई गेटिंग इट एंड आई एम वेरी एंग्री ऑन टू सुजनी। In spite of knowing that for the last 2 to 3 weeks पहले टाइम टेबल में मिल गया था कि मैग्नेटिज्म है एग्जाम्स में, why didn't you say it early? Why didn't you speak it out? मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें लेक्चर में से निकाल दूं। Really, I feel like that. Even रिया को निकाल दूं मैं। लास्ट मोमेंट के ऊपर तुम लोग बताते हो, जबकि तुम्हें पता था कि है तुम्हारी एग्जाम्स। मैं पूछते भी आया था, मैं पूछा भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं, एकदम जब्त। और फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर नो व्हाट एग्जैक्टली पेरेंट्स आर गोइंग टू थिंक, तुम लोग तो यही बोलोगे कि आई10 हमने कंप्लीट नहीं किया। डोंट डू लाइक दैट। हमेशा थोड़ा सा सेल्फिश बनो स्टडीज के मामले में। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा यूनिट है। और एक वे से तुम यूनिट लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अगर मैं सपोज मैं बी का फॉर्मूला और एक में लेता हूँ स्टूडेंट्स, v नॉट n into I। ओके, ये क्या है सर? ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है, इनटू ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो मीटर ऊपर आ जाएगा, करंट नीचे आ जाएगा, तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका और एक यूनिट है वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, म्यू जीरो का वैल्यू क्या है। एग्रीड? स्टूडेंट्स म्यू जीरो इज ऑलवेज 4 पाई into 10 raised to -7। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें वेबर में इसका यूनिट पूछा तो कैसे लिखते हैं? वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर। ये है तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स क्लियर? Yes. अभी मुझे बताओ बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर बी का फॉर्मूला क्या होगा? तुरंत तुम बोलोगे सर आपके हाथ में एफ का फॉर्मूला है ना, डाल दो ना एफ यहाँ पे, तो बी का फॉर्मूला आ गया। तो व्हाट एग्जैक्टली बी विल बी कर दो सर? एफ बाय एम। एफ बाय एम, एफ क्या है? सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर अपॉन एम। ये एम स्क्वायर पोल स्ट्रेंथ है, ये भी पोल है, तो एक पोल स्ट्रेंथ कैंसिल हो जाएगा। देन से ओनली 1 m will be left upon r square, and this answer will be simply in Tesla or Weber meter square inverse।
So now can you tell me, students, what is the formula for magnetic field intensity or magnetic field strength? The magnetic field intensity or magnetic field strength is given by the formula mu naught upon 4 pi small m upon r square. एक ही m मैंने दिया है, वो कौन सा m दिया है मैंने? Strength of pole. और स्टूडेंट्स कभी भी हम मैग्नेट के बारे में तो टू पोल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर. नेचर का मतलब एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है. नॉर्थ को हम लोग ने प्लस एम ले लिया, साउथ को माइनस एम ले लिया. क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? Yes. sir. Now if I ask you what is the formula for force acting on a magnet? Students, the force exerted, the magnetic force exerted on a given pole depends on the magnetic field intensity in which it is placed. So force due to magnetic field is magnetic field into strength of pole. So F is equal to B into M, and this answer will be Newton. ये M क्या है? पोल स्ट्रेंथ. निकाल सीधा. अगर ये तुम्हारा वेक्टर होगा तो ये भी तुम्हारा वेक्टर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. दूसरा फिर मैंने बोला था स्टूडेंट्स, फॉर एनी बार मैग्नेट, स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, फॉर एनी बार मैग्नेट, ये देखो ये तुम्हारा नॉर्थ है और ये तुम्हारा साउथ है, ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 2l है. स्टूडेंट्स योर मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स योर ज्योमेट्रिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ इज कैपिटल L. स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है? कैपिटल L. इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, एंड टू एंड ऑफ द मैग्नेट. ये एंड टू एंड का मैग्नेट है वो L है, and 2l is the distance between north and south. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक लेंथ है. मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ. एग्री? Agreed, students? Yes, sir. Okay. Now you have 3 formulas. That's all. And 3 to 4 formulas of the chapter will be over, students. Okay. इतना तुम्हें एकदम क्लियरली बताना चाहिए. अभी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स? It is known by variable phi. Students, have you come across anywhere the term flux? कहाँ पे पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ students? Yes, sir. नहीं पढ़ा? प्रिया? Nice. Okay. Anybody else? Anybody else in the group? Gauri, Richa, Parth, Nan, Aditya Giri, Aryan, Lakshiraj, Danish, Devan, Priya, No, sir. Fahad, Hare Krishna, Rahul Chaudhary, No, sir. Richa, and Sujini. Sir, it's Ujni. Okay, so Sujini. Have you heard about it, Sujini? No. आज लेट क्यों आया? फहद के बाद आया. फहद ने तुम्हें बोला लेक्चर अटेंड करने के लिए? हाँ नहीं, आज तुमने वैसे ही किया. बेचारा फहद आ गया थोड़ा सा पहले, तुम्हारे से पहले. और तुम लेट आए लेक्चर्स में. मैं तो लेने वाला भी था. फहद और सारे बोल रहे थे कि नहीं सूजन को मत लो सर, लेट है वो. सर ऐसा कोई नहीं बोलेगा. अच्छा, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं बोला? सर कोई नहीं बोलेगा ऐसा. कि विशाल ने बोला. देखो विशाल बोल रहा है नहीं. सर वो भी नहीं बोलेगा. अच्छा, क्या बात है. सारे फ्रेंड्स सी ऑल. ऐसे तुम लोग यूनाइटेड क्यों नहीं होते स्टडीज के मामले में, पोर्शन कंप्लीशन के मामले में, हाँ, डिस्कशन ऑफ डाउट्स के मामले में, हाँ, क्वेश्चनिंग के मामले में, अंडरस्टैंडिंग के मामले में. दूसरी चीजों के लिए तुम लोग का यूनिटी दिखाई देता है, लेकिन जब पढ़ाई के मामले में आता है और फिजिक्स के मामले में आता है तभी सेफ खेलते हो सारे, है ना? सारे बदमाश है एकदम, सारे एकदम डिंचक है. ओके, लेट्स मूव फर्दर अहेड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ये नाउ वी हैव प्रीति पटेल. क्या बात है, सीएस की स्टूडेंट. ओके, पटेल, सारे पटेल.
देखो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो रेड कारपेट ट्रीटमेंट देना चाहिए। फाद क्या करो, इनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दो, इतना लेट आए। हाँ फाद, प्रीति पटेल को उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। हाँ सारे क्लैप करना, अभी वो एंट्री मारे तो। It seems like that Preeti Patel is there or not there. Preeti Patel, are you there? Preeti Patel? Preeti Patel? How are you, Preeti Patel? Please unmute yourself. She's not replying. She's angry onto all of you all. Nobody baked her up, na? That's the reason. Sujini, you didn't call her up to attend the lectures. That's bad. Okay, सर मैं students. आज खुद लेट थी। Okay, नहीं फिर भी तेरे को प्रीति पटेल को उठाना था, ये गलत है। Okay, students. Now come back, students. मैंने पूछा, have you come across the word flux? Students, everybody has learned about this flux. And you have learned it in electrostatics. Students, tomorrow you have electrostatics also, no, for the exam? Huh? Ayana, Riya? Yes, sir. Riya, what are you doing? Riya, what are you doing? You don't know what exactly the portion is. How many marks the paper is tomorrow? 25. And it will be most of the times it will be multiple choice questions. Yes. Yes. Then, and when I speak about, और मैं जानबूझ के सारे प्रॉब्लम, देखो मैं सारे फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, जानबूझ के फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ये फॉर्मूलाज एकदम थरली याद करोगे ना, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज करेक्ट जाएंगे। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका एनालॉग ऑलरेडी तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। So don't do like that. अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय वेरिएबल फी, ये phi है, फी ये है डॉट प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स स्केलर प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as number of magnetic field lines passing normally from a given surface. कितनी field lines pass हो रही है from a given surface is called as magnetic flux. So magnetic flux is simply magnetic field intensity passing from a given area. So it's a dot product of B dot A. So it's B dot A. B stands for magnetic field strength, A stands for surface area. और ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, यानी ये स्केलर, सॉरी ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अ स्केलर। इसका कंपोनेंट कैसे तुम करोगे, सॉरी इसका तुम हाउ डू यू राइट द कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ इट, से डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इट विल बी बी ए cos थीटा, मींस ईदर यू कैन गो फॉर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अगर तुम्हें वेक्टर्स याद हो, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए या कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी बी cos थीटा इनटू ए भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, या b into a cos theta भी लिख सकते हो, so I cannot have b a cos theta. ये है magnetic flux. Number of magnetic field lines passing normally from a given surface is called as magnetic flux. इसका यूनिट क्या होगा, तो तुरंत बोलेगा सर b का यूनिट तो मेरे सामने है, ये देखो ना b का यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है एरिया मीटर स्क्वायर, सर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, सर इसका यूनिट तो सिंपली वेबर होगा, यस वेबर। So अगर किसी ने पूछा what is the unit of magnetic flux, students, then your answer is simply Weber. ये ध्यान में रखना, क्योंकि देखो ये क्या है, वेबर पर मीटर, स्टूडेंट्स ये वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर will get cancelled. Now let us go for इसका explanation. स्टूडेंट्स इसका explanation के लिए जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सोचो कि मेरे पास में एक कंटेनर है स्टूडेंट्स, ये कंटेनर है, ओके, जहां से और ये पूरा ऐसे सोचो कि ये आयन कंटेनर है, made up of iron, a magnetic substance, students. पूरा एक आयन कंटेनर है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एग्रीड, होप दैट यू आर गेटिंग इट। और फिर मैंने क्या किया मालूम है, मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ अंदर, प्लीज पे अटेंशन फॉर दिस,
यहाँ पे मैंने ऐसा रखा है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब मुझे बताओ, मैंने मैग्नेट को अंदर थोड़ा सा डायगोनली रखा और ये तुम्हारा सरफेस है। ये अगर मैं सरफेस एरिया इसके बारे में बात करूंगा तो कहने से एरिया कैन बी कंसिडर एज अ वेक्टर। ऑफ कोर्स सरफेस एरिया इसका एरिया क्या होगा सर? लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए रेक्टेंगुलर शेप है, ये पूरा एरिया हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से सुना, ये शेडेड पोर्शन एरिया है। अगर इसको मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया मेरा? एरिया वेक्टर। आया ना? हाँ स्टूडेंट्स, नॉर्मल टू द सरफेस। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तुम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही पढ़ा होगा। A perpendicular drawn from a given surface speaks about the area vector. It always shows the direction. It always shows the direction we consider. So area can be considered kind of a tensor. जब भी मेरा कंफर्ट होगा तो मैं उसको स्केलर ले लेता हूँ, जब मुझे चाहिए जब उसको मैं वेक्टर ले लेता हूँ। लेकिन वेक्टर मैं क्यों ले रहा हूँ? सिर्फ उसका डायरेक्शन के हिसाब से। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। स्टूडेंट सबसे पहला क्या ये एरिया वेक्टर क्लियर होगा? पहले बताओ Yes, स्टूडेंट। sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर सपोज मैंने हाथ मेरा ऐसा रखा, स्टूडेंट्स आई केप्ट माय हैंड इन दिस मैनर, तो ये सरफेस एरिया हुआ ना, ये सरफेस एरिया हुआ। तो अगर मेरा ये हाथ रेक्टेंगुलर शेप में होता तो लेंथ इनटू ब्रेथ उसका एरिया होता। अगर स्क्वायर होता तो साइड स्क्वायर होता। इसी को अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये क्या बन गया? मेरा एरिया वेक्टर हो गया। इट शोज ओडी द डायरेक्शन, किस तरफ मैंने सरफेस रखा है। अगर मैंने सरफेस ऐसा रखा है तो ये मेरा एरिया वेक्टर, मैंने सरफेस ऐसा रखा है तो ये एरिया वेक्टर, मैंने ऐसा रखा है तो ये एरिया वेक्टर। देखो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर चेंजेस। लेकिन मैंने मैग्नेट को कैसे रखा? टिल्ट रखा है। Do you see the magnetic field lines? How is the lines of force? The magnetic field lines are going in this direction. देखो, externally is going from where to where? North and entering through south, है ना? North to south. है ना? ये फील्ड लाइंस है, ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा एरिया वेक्टर को, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं एरिया वेक्टर को पीछे ले लूं, थोड़ा सा एरिया वेक्टर को पीछे ले लूं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट? हाँ स्टूडेंट्स, तुम्हारे हिसाब से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? हाँ स्टूडेंट्स, do you see any field lines over here? No, only two field lines are passing through it. What is magnetic flux? Number of magnetic field lines. Number of only two magnetic field lines passing through a given surface. How many are there? Only two. Normally through a given surface, only two. अगर मुझे फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए, अगर मुझे फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम लाइन शिफ्ट पास होगी। तो तुम क्या करोगे? मैक्सिमम फील्ड लाइंस को पास करने के लिए तुम तुरंत बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना, मैग्नेट ये जो टिल्टेड है, क्या हम मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल रख दे? हाँ स्टूडेंट्स, क्या मैं मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल रख दूं? हाँ सर हॉरिजॉन्टल रख दो ना। सरफेस एरिया देखो, ये तुम्हारा सरफेस एरिया वेक्टर इस तरफ ही जा रहा है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया स्टूडेंट्स, तो अभी देखो हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू इट? सर 1 2 3 4 5। Externally they move from north to south, inside they move from south to north. पहले कितनी लाइंस पास हो रही थी? सिर्फ दो पास हो रही थी। What was the angle between them? थीटा। अगर मुझे फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे फ्लक्स, if I want maximum magnetic flux, students, how should be the area vector and magnetic theta direction? Both should be parallel. Theta should be 0, cos of 0 should be 1. Therefore, flux will be maximum and the formula will be simply B into A. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. Yes, sir. तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, या तो तुम इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यानी क्या करो, देखो दो पॉसिबिलिटी है। पहला स्टूडेंट बोलेगा सर हम मैग्नेट को सीधा करते हैं, मैग्नेट को सीधा करते हैं। लेकिन सूचनी बोलते हैं सर जरूर नहीं, मुझे मैग्नेट को सीधा नहीं करना, मैं बॉक्स को टेढ़ा कर दूं। चलेगा ना? वो बॉक्स मेटालिक बॉक्स है, आयन है, मैग्नेटिक सब्सटीट्यूट, उसको भी टेढ़ा कर दो तो एरिया और वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रहा है।
Now see, can I say maximum field lines are passing through a ds? So what is the definition of magnetic flux? Number of magnetic field lines passing normally from a given surface. Students, when does the flux is maximum? When theta is 0, cos of 0 will be 1. यही अगर क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बोला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ गिवन सरफेस. क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्लक्स के बारे में? हाँ स्टूडेंट. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is magnetic flux. अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? यानी स्टूडेंट्स मैंने क्या पूछा मालूम है? मैंने ये भी पूछा. So it is magnetic flux upon area vector. स्टूडेंट्स अभी देखो ये ध्यान रखना, ये जो बी है अभी मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बोलूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैं उसको बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. यानी ये क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया स्टूडेंट्स, पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इसका यूनिट क्या है? सिंपल वही यूनिट, ये जो है देखो ना, ये वेबर है, ये मीटर स्क्वायर है. देखो इसका यूनिट क्या वेबर, इसका यूनिट क्या होगा? वेबर मीटर स्क्वायर. लेकिन अगर किसी ने फ्लक्स पर यूनिट एरिया पूछा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. यानी स्टूडेंट्स जब भी एमसीक्यूज होते हैं ना तो बहुत ध्यान में रखना, जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. वर्ड फ्लक्स आया तो उसका मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया. अगर उन्होंने पूछा गिव मी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, F by m or mu upon 4 by m upon r square, F by m या mu upon 4 by m upon r square, m is a whole strength. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. अरे हाँ ना, देख तेरे संसार की क्या हो गई. Students, is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Now students will be going for two short derivations. Students, B along the axis and B along the equator. Students. Okay, magnetic field along the axis and magnetic field along the equator, and we can go for any arbitrary position also. Students, is there any cut down in the syllabus? यहाँ पे तुम्हारा को syllabus cut down की सबसे बोला गया? Can you tell me? किसी के पास है? हाँ students, कुछ बोला गया तुम लोग को? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं आया है. क्या कुछ नहीं आया? 224, 225. You know about it, whether you know it or not. Fine, doesn't matter. वो तो theory है पूरा, वो theoretical है, nothing to worry about it. Okay, our students will be going for the derivation. Students, अभी हम बात कर रहे हैं, suppose अगर मैंने कोई मैग्नेट लिया, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैंने कोई मैग्नेट लिया है जिसका नॉर्थ यहाँ पे है स्टूडेंट्स और ये साउथ यहाँ पे. एग्रीड? ये प्लस m है और ये माइनस m. Students, can you tell me what is the line passing to the center of the magnet and passing to the poles of the magnet? क्या बोलते हो इसको तुम? What do you call this as? Students, what is that called? वाह रे वाह, लास्ट लेक्चर इतना सिखाया, इतना चिल्लाया, फिर भी कुछ काम कर दी. स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इसको? Magnetic axis. A line passing through the center of the magnet and passing to the poles is called as magnetic axis. A perpendicular bisector of magnetic axis is called. Students, इसको क्या बोलेंगे? Magnetic equator. देखा स्टूडेंट्स, किसने आंसर दिया? ये किसने आंसर दिया? रिया ने आंसर दिया. किसने दिया? रिया ने आंसर दिया. Got it? शुभम, विशाल, रिचा, राहुल, पृथ्वी, पटेल, सुजनी, फहाद,
रिया प्रेजेंट भी नहीं थी लास्ट लेक्चर में, फिर भी उसने आंसर दिया। अरे सुजनी क्या हो गया, वापस गई, वापस आ रही है। हाँ फाद, व्हाट इज हैपनिंग टू हर? मेरे को क्या पता सर। तो बाहर जाके वापस मैंने इसको एडमिट किया। Students, the perpendicular bisector of magnetic axis is called as magnetic equator. सुजनी कहाँ गए थे तुम? Why did you go out of the lectures? सर नेटवर्क इशू था। कुछ भी यार, कहाँ से नेटवर्क इशू? आंसर देने के टाइम पे तुम चले जाते हो। रिया ने आंसर दिया, पता है? कोई आंसर नहीं दे रहा है। Only one girl in your class was answering. सर मेरे को नहीं पता था, नेट अच्छा बंद हो गया तो वही कर रही थी। Okay. Students, ये मैग्नेटिक एक्सिस तो मैग्नेटिक इक्वेटर है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, आंसर सुना स्टूडेंट्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis, equator, an arbitrary position. Arbitrary position. Arbitrary position का मतलब क्या है? ध्यान से सुना, यानी तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस। ध्यान से सुना, उसका मतलब क्या मालूम है? तुम ये सोचो कि तुम्हारा ये मैग्नेट है और इसका एक रीजन है, उसको हम बोलते हैं फील्ड। अगर सपोज मैं एक पॉइंट पी यहाँ पे लेता हूँ और ये सोचो कि मैंने यहाँ पे छोटा सा मैग्नेट रखा है जिसका नॉर्थ फेसिंग हो रहा है, जिसका नॉर्थ इसको फेस हो रहा है ना? तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ एंड साउथ आर टू पोल्स। तो तुरंत तुम बोलोगे सर हाँ फाइंड आउट कर सकते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड है क्या सर? वेक्टर है, ये देखो वेक्टर है। ये क्या है? फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। क्या ये फोर्स अप्लाई करेगा सर? ये नॉर्थ अप्लाई करेगा फोर्स? हाँ सर, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये उसको रिपेल कराएगा। समझ में आ रहा है? ये साउथ है ना, माइनस है, ये तो इसको अट्रैक्ट कराएगा। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हुए वहां पे चार्ज रखा था। तो हो क्या रहा है सर? सर देखो ना, इसका डिस्टेंस, सर इसका डिस्टेंस कम है नॉर्थ का इससे, सर साउथ का डिस्टेंस ज्यादा है, तो सर यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स कम होगा, रिपल्शन का ज्यादा होगा, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा? सबट्रैक्शन। दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या पढ़ा है? When two vectors are in opposite direction, how do you find out the resultant? Subtraction of the two vectors. But can you find out the resultant magnetic field intensity along the axis? Yes. We are trying to find out that answer. फिर दूसरा दूसरा कौन सा कंसिडरेशन है? दूसरा हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि now let us say a point P is on the equator. अभी सपोज मैंने कोई P को इक्वेटर पे लिया है, वही डिस्टेंस पे। ये जो पॉइंट P है, now if I say that the point P is on the equator, तो क्या होगा? What is going to happen to this particular point P? तो तुरंत तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी एक मैग्नेट हम अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे भी एक मैग्नेट अज्यूम करता हूँ जिसका प्लस एम यहाँ पे है, यानी ये नॉर्थ इसको क्या करेगा सर? ये नॉर्थ इसको रिपेल करवाएगा, ये साउथ इसको क्या करवाएगा? अट्रैक्ट करवाएगा, है ना? तो कहने से दो फोर्सेस एक्ट हुए, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? सुन, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? तो तुम बोलोगे सर आपको इतना भी नहीं पता, आपने वेक्टर्स पढ़ा नहीं है क्या? सर आपको कुछ भी नहीं आता है। हमको वेक्टर्स आता है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। सर हम ऐसा करते हैं ना, ये वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर देखो टेल है, मेरा रिजल्टेंट इस तरफ से आएगा। ये हुआ मेरा रिजल्टेंट along the equator, और यहाँ पे होगा मेरा रिजल्टेंट along the axis। तो इक्वेटर के लिए देखो कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सिस का इस डायरेक्शन में गया। कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? यस सर। लेकिन अगर मैंने बोला आर्बिट्री पोजीशन, उसका मतलब क्या सूजनी? तुम बहुत यस सर बोल रहे हो, तो बताओ। अभी कोई आंसर नहीं देगा सूजनी को। सूजनी, tell me what exactly you mean by be at any arbitrary position, उसका मतलब क्या?
Don't laugh. I want an answer. Don't look into your textbook also. So what? Can you tell it? Rekha, I want to find out magnetic field intensity at any arbitrary position. At any position other than the axis and equator. A, R, B, I, T, R, A, R, Y. Arbitrary position. तो तुम क्या करोगे? How do you get the answer? Jaldi Sujini. Fast speaking. No much time. Now see. Anybody else? Students, anybody else who can tell me what exactly you mean by magnetic field intensity at any arbitrary position? उसका मतलब क्या? तो तुरंत तुम्हें बोलना चाहिए सर उसका मतलब ये कि ना ही तुम्हारा मैग्नेट एक्सिस पे है, ना ही तुम्हारा मैग्नेट कहाँ पे पोल्स पे है। सर मैग्नेट में यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कोई भी क्वाड्रेंट में रखो, कहाँ पे भी, तो आर्बिट्री पोजीशन हो गया। आर्बिट्री पोजीशन हो गया। क्या तुम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट इज द रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? क्यों नहीं? और वो तुम्हारा डेरिवेशन टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is everyone is getting it? Students, all the students who are inside the group. Gauri, are you understanding? Gauri, Nayak, Gauri, are you there? Yes, sir. Okay. Richa, are you there? Richa, are you understanding? Richa, are you understanding? Richa, knock, are you there? Richa, are you there? If you're not there, I'll throw you out of the lectures. Richa, if you're not there, I'm not going to keep you into the lectures. Reply fast. She's not replying. Nan, is it clear? Parth Patel, is it clear? Nan, Parth Patel. Yes, sir. Clear. Okay, Parth Patel, fast. Parth Patel, are you there? Parth Yes, Patel, are sir. you there? Yes, sir. Clear? समझ में आ रहा है? Aditya Giri, is it clear? Aditya Giri, is it clear? Aryan, Yes, sir. Aryan, Dakshraj, Danish. Aryan, Dakshraj, Danish. Aryan, clear? Dakshraj, Danish is clear. Aryan, what about you, Aryan? Yes, I'm not sir. able to hear you. Okay. Devansh, Dhairya, Fahad. Hope you're understanding. Devansh, Dhairya, Fahad. Yes, sir. Yeah. Okay. Devansh, Dhairya, are you there? Devansh, Yes, sir. Dhairya. Yes, sir. Okay. Fine. Jai Krishna. Jai Krishna. Jai Krishna. Not answering. Krishna. Not answering. सबको बाहर निकाल रहा हूँ मैं जो आंसर नहीं दे रहे हो। राहुल चौधरी, रिचा, रिया. Yes, sir. Okay. Rahul Chaudhary, what about you, Rahul Chaudhary? Richa? Rahul? Yes, sir. Okay. Rahul Chaudhary, I'm waiting for you. Yes, sir. Okay. कहाँ सो गया था तू? Okay. Brajesh, Vivek, Vedant. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Brajesh, what about you, Brajesh? Yes, sir. तू सो रहा है ब्रजेश, ऐसा मत कर। तरंग,
करण, Yes, sir. ओके। अभी ये अपना वेदांत वेदांत दूसरे नाम से एंट्री किया, उसने नेम चेंज किया ना, क्या नाम था उसका? नाम रशिद था ना? वेदांत आई है? Yes, sir. ओके, क्या तुम्हारा नाम क्या है? वेदांत ही है या कोई दूसरा नाम है? Vedanti है sir. ओके, फाइन फाइन। अरे फ्रेंड्स, कैन आई इरेज ये सारे फॉर्मूलाज को इरेज कर दूं अब मैं? सर 2 मिनट। यस फ्रेंड्स, डन। कैन आई इरेज इट? यस सर। Okay. Now students, your last derivations. एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू, ये जो भी एग्जाम्स हो रही है ना स्टूडेंट्स, उसको सिंसियरली दो, क्योंकि तुम्हारे अगर सपोज बाद में भी अगर एग्जाम्स के हिसाब से मार्क्स हो गए तो ये सारे मार्क्स काउंट होंगे। डोंट टेक इट लाइटली, ये ध्यान में रखना। तो आज भी प्रिपेयर करो कल के लिए, कल भी प्रिपेयर करो परसों के लिए। डोंट जस्ट टेक इट कैजुअली स्टूडेंट्स। Okay students, now students will be going for magnetic field and an arbitrary fluid. Students, magnetic field intensity students at arbitrary position.
Now how do you go about this, students? इसको समझने के लिए ना प्लीज पेयर अटेंशन. Suppose if I happen to give you a magnet. स्टूडेंट्स ये है साउथ और ये है नॉर्थ, ये है -m और ये है +m, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है सर? डिस्टेंस इज 2l. ये होगा तुम्हारा एक्सिस और ये जो तुम्हारा होगा वो इक्वेटर. हम नए एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, हम नए इक्वेटर के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. दूसरी बात, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? And your answer is magnetic dipole moment is always directed from south to north. ये सबको पता होना चाहिए. Now suppose अगर students मैंने कोई एक arbitrary position select किया, let us say that point P is an arbitrary position somewhere over here. यानी मैंने इसका क्या किया students? मैंने इसके polar coordinates लिए. यानी now this becomes a distance. ये तुम्हारा r हो जाता है students. और it forms an angle theta with the horizontal. यानी ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स है? मैंने पोलर कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स. यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? थीटा कॉमा r स्टूडेंट्स. पॉइंट P इज एट थीटा कॉमा r. ये तुम्हारा आर्बिट्री पोजीशन. नाउ सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा और उसका डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर एट एन एंगल थीटा. एट एन एंगल थीटा डिस्टेंस r, दिस इज अ पॉइंट P. Then can you tell me students what is exactly the direction of magnetic field intensity resultant? तो हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने, इसको समझने के लिए क्या करेंगे? अगर सपोज बाय चांस स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं ये मैग्नेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं और पी को उसके डायरेक्शन में लगा दूं. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अभी मैं मैग्नेट को जानबूझ के उसको डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उसको मैंने टिल्ट कर दिया. और स्टूडेंट्स इसको मैंने टिल्ट कर दिया. एग्रीड? तो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, इसको जैसे मैंने टिल्ट कर दिया, अगर तुम डॉटेड लाइन देख लो स्टूडेंट्स, तो कैन आई से मेरा जो नॉर्थ होगा स्टूडेंट्स, मेरा जो नॉर्थ जो यहाँ पे था, कहने से अभी वो पॉइंट यहाँ पे आ गया, साउथ यहाँ पे आ गया. क्या स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मैंने मैग्नेट को टिल्ट कर दिया तो नॉर्थ यहाँ पे आ गया, साउथ यहाँ पे आ गया. मींस कहने से इट इज फॉर्मिंग एट एन एंगल थीटा. एग्रीड? So now can I say this point P is where? So this point P is along the axis. This point P is along the axis. What is the direction of magnetic dipole moment from south to north? तो यहाँ पे क्या होगा सर? ये होगा m cos theta. ये है direction of magnetic dipole moment along the axis. Equator किस तरफ होगा स्टूडेंट्स? ये जो डॉटेड लाइन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो डॉटेड लाइन है ये तुम्हारा मैग्नेट है. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. अभी मैंने मैग्नेट का पोजीशन थोड़ा सा इंक्लाइन रखा है स्टूडेंट्स. तो ये हुआ तुम्हारा एक्सिस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इक्वेटर. तो अगर इक्वेटर लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो इसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जो मैंने कंपोनेंट्स निकाले स्टूडेंट्स, इसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जो मैंने कंपोनेंट निकाले हैं, एक होगा m cos थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा m sin थीटा. कैपिटल M. व्हाट इज कैपिटल M स्टैंड्स फॉर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. क्या ये डायग्राम अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोई आर्बिट्री पोजीशन लिया है और अगर मैंने मैग्नेट को टिल्ट कर दिया है, तो वो पॉइंट P कहाँ पे हो गया सर? इस मैग्नेट के एक्सिस पे हुआ. आई गेटिंग इट? और ये इसका इक्वेटर हो गया, दैट इज m sin थीटा स्टूडेंट्स. नाउ इफ आई हैपन टू कंसीडर एक्सिस के हिसाब से इसका फील्ड किस तरफ जा रहा है सर? ये जो है ये रिजल्टेंट फील्ड किस तरफ जाएगा? बी अलोंग द एक्सिस. ये इस डायरेक्शन में गया. बी अलोंग द इक्वेटर किस तरफ गया सर? वो एंटी पैरेलल जाएगा. ये बी अलोंग द इक्वेटर चला जाएगा. इसके डायरेक्शन में स्टूडेंट्स इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट. आई गेटिंग इट? डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स. इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ गया? ये पॉइंट P यहाँ पे. इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे गया? सो इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूं, देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? टेल है. तो रिजल्टेंट क्या है? इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल phi. यानी स्टूडेंट्स आर्बिट्री पोजीशन पे एक तो बी अलोंग द एक्सिस है, बी अलोंग द इक्वेशन है,
इक्वेटर है और ये तुम्हारा एक एंगल फी हो गया, एक एडिशनल एंगल आ गया। तो नाउ कैन आई से व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी अलोंग द एक्सिस? तो फॉर्मूला क्या है सर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m cos थीटा अपॉन क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये तुम्हारा आंसर होगा। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी अलोंग द इक्वेटर, तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M sin थीटा अपॉन r क्यूब। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये देखो, इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, एंटी पैरेलल होगा। यानी ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे आया। ये सेकेंड इक्वेशन है, वो ये वाला है। हाउ आर दीज टू आर? सर बोथ ऑफ देम आर एट 90 डिग्री, बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री। कैन यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट? हाँ स्टूडेंट्स, इन दोनों का रिजल्टेंट तुम फाइंड आउट कर सकते हो? Anybody? Can you find the result of these two? You'll say yes, sir. Result will be what? So simple. Root of b along the axis the whole square plus b along the equator the whole square, because the angle between them is 90 degree. तो ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद आ रहा है? Resultant vector is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. यहाँ पे theta is 90. Students, is this much clear first of all to all of you? Then I'll proceed further. Otherwise, I don't want to proceed further. Yeah. You understood it very clearly. Please, concept क्या है? ध्यान से सुनो, वापस बोल रहा हूँ। ये मैग्नेट है स्टूडेंट्स, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैंने एक आर्बिट्री पोजीशन के लिए पूछा, तो मैंने अज्यूम क्या किया कि इस मैग्नेट को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। मैंने टिल्ट कर दिया। जैसे मैंने टिल्ट कर दिया तो वो जो पॉइंट था ना स्टूडेंट्स, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया स्टूडेंट्स, वो पॉइंट क्या बन गया मेरा? ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज हाउ आई टिल्टेड इट। तो वो जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो जो पॉइंट यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, वो क्या बन गया? एक्सिस बन गया। और यहाँ पे जो होगा वो इक्वेटर बन गया। So B along the equator is always anti-parallel to the magnetic dipole moment, and B along the axis is in the direction of magnetic dipole moment. स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ना, ध्यान से सुनना, तो ये भी एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। B along the axis is always in the direction of magnetic dipole moment, लेकिन B along the equator is anti-parallel। ये नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर किसी ने रात को 3 बजे भी तुम्हें उठा के पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B along the axis, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए B along the axis of a magnetic dipole is always in the direction of magnetic dipole moment. But B along the equator, magnetic field intensity, magnetic field strength along the equator at a distance r is always anti-parallel. तो नेगेटिव में आएगा। ये वेक्टर नेगेटिव साइन आएगा। ये वेक्टर फॉर्म। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सिंस मैग्नेट को मैंने टिल्ट कर दिया, ये थीटा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है। तो अगर सपोज मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, तो मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया था ना एट एन एंगल थीटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा सर? ये हो जाएगा m cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? m sin थीटा। आगे तुम्हारे दो कंपोनेंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now if I happen to go for the resultant, can I get the answer for the resultant? Why not? Now solve this. B resultant under root B along the axis, इसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। Agreed? So mu naught upon 4 pi. Agreed? 2m cos theta upon r cube the whole square plus mu naught upon 4 pi m sin theta upon r cube the whole square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको?
Yes. यहाँ पे देखो मिरर अपन 4 पाई मिरर अपन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, एम भी कॉमन आ जाएगा, आर क्यूब भी कॉमन आएगा, और वो पूरा स्क्वायर है उसको बाहर निकाल दूंगा तो रूट में से बाहर आएगा, तो कहने से बी रिजल्टेंट ये मी नॉट अपॉन 4 पाई बार एम बार आर क्यूब बार, रूट में क्या आएगा 2 स्क्वायर इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, इसे Yes, मैच sir. किया, therefore B along the equator, sorry B along the B resultant students, अगर मैं B resultant निकालूंगा तो how am I getting it? Since B resultant का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B resultant mu naught upon 4 पाई m upon r की भी कैपिटल है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, अंडर रूट, अभी ना स्टूडेंट्स मैं एक cos स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालूंगा तो व्हाट इज एक cos स्क्वायर थीटा निकालूं तो बचेगा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1. This becomes your formula for magnetic field intensity at arbitrary position. और ये आंसर होगा तुम्हारा किसमें, यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा वेबर मीटर स्क्वायर इनवर्स और टेस्ला। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ना अगर Yes, किसी ने पूछा can you give me an answer for B along the axis, अगर मैंने ले लिया सपोज, अगर यही पॉइंट मैंने एक्सिस पे लिया था तो थीटा क्या बन जाता? स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली थीटा बिकम्स, अगर ये पॉइंट P में एक्सिस पे लेता तो थीटा क्या बन जाता? 0 ना, आया ना? हाँ. ये पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता तो थीटा क्या बन जाता? 0. व्हाट इज cos of 0? व्हाट इज cos of 0? 1. 1. What is my formula then? Three plus 1 4. What is the root of 4? यानी कहने से ये आंसर आता cos of 0 is 1. यानी स्टूडेंट्स ये किसके लिए मालूम है, ये हमेशा बी along the axial position के ऊपर तुम देखो तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा विल बी 0. अगर मैंने वही 90 पे ले लिया स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट cos of 90 will be? What is cos of 90? 0. cos of 90 will be 0, तो बचेगा 1, तो ये आ गया फॉर्मूला। यहाँ पे थीटा 0 लोगे और यहाँ पे थीटा क्या लोगे 90 लोगे, और यहाँ पे थीटा 0 लोगे। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूला? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, अगर sir. भी तो cos of 0 1 आएगा तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा 2 अपॉन r क्यूब। वही अगर मैंने इक्वेटर पे ले लिया स्टूडेंट्स तो थीटा मेरा 90 बन जाएगा ना। व्हाट इज cos of 90? cos of 90 will be 0, तो बचा क्या 1, यानी m अपॉन r क्यूब, ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. समझा. Very important is B is a vector quantity. B is a vector quantity. अगर मैंने बोला what is B along the axis, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए पैरेलल टू मैग्नेटिक डाइपोल। ये ध्यान रखना। B along the equator क्या होगा, एंटी पैरेलल, यानी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ये देखो, ये तुम्हारा B along the axis इस तरफ जा रहा है, लेकिन देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, दोनों एंटी पैरेलल। और ये देखो, ये एरो हेड और ये एरो हेड एक ही डायरेक्शन में, ये ध्यान देना हमेशा, ये एंटी पैरेलल और ये पैरेलल। कैपिटल एम इज डाइपोल मोमेंट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या
क्या स्टूडेंट समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स पूछ रहा हो तो क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया ना? हाँ It's only one student is saying it. What about the rest of them? What about rest of them? It's only Riya is saying it. Yes. बाकी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है. मैंने फाइंड आउट किया है Yes, sir. Yes, sir. एट एनी यानी स्टूडेंट्स अभी ये ध्यान में रखना, जब भी कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो ना बी एट, तो हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, आर्बिट्री पोजीशन. तो तुम्हें इक्वेटर का और एक्सिस का दोनों का मिलेगा. अगर मैंने याद रखा मिनट अपॉन 4 कैपिटल एम क्या मैग्नेट डायपोल अपॉन आर क्यूब है, आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब है. 3 ये फॉर्मूला याद रखना भाई, सॉरी ये नहीं है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. ये हमेशा ध्यान में रखना, आर्बिट्री एनी पोजीशन. अगर सपोज मैंने एग्जामिनेशन में पूछा फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, आर 10 सेंटीमीटर दिया है एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द डायपोल मोमेंट, यानी थीटा को क्या लेना 30 डिग्रीज और सॉल्व करना है बस. लेकिन वही अगर थीटा 0 हो जाएगा तो cos of 0 1 हो जाएगा, तो मुझे m मिलेगा. देखो cos of 0 1 हो जाएगा तो 2m मिलेगा मेरा आंसर. 3 + 1 4 होगा, √4 2 आ जाएगा. लेकिन वही अगर मैंने पॉइंट को इक्वेटर पे ले लिया तो थीटा क्या बन गया 90 बन गया. व्हाट इज साइन ऑफ 91? यहाँ पे देखो 90 डाल तो पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा 1. फिर ये याद में रखना कि बी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मैंने एक्सिस पे लिया है तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा. लेकिन इक्वेटर पे हमेशा एंटी पैरेलल. तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट तो नेगेटिव साइन आएगा 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 फॉर शॉर्ट डाइपोल. सो दे गिव यू द प्रॉब्लम रिगार्डिंग शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या? शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या? पॉइंट पी इज वेरी फार. स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो तो सारे फॉर्मूलाज किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए. स्टूडेंट्स शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या? मतलब मैं ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. अगर मैं तुम्हारे क्लासरूम में खड़ा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. इफ आई एम स्टैंडिंग इन द क्लासरूम और मेरे सामने एक फर्स्ट बेंच है, वहां पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मेरे को दोनों एकदम परफेक्टली एक डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं उनके नजदीक खड़ा हूँ. लेकिन अगर वही 2 स्टूडेंट्स पीछे वाले बेंच पे होते हैं, सपोज 15th बेंच होगा पीछे वाला, तो कैन आई से आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम देम? So can I say the two students might be appear to me as one? Yes, they will be very close. For me, अगर मैं देखूंगा तो उनके बीच में अगर मैं ऐसा हाथ से मेजर करूंगा, अगर तो मेरे को ऐसा इतना छोटा डिस्टेंस, लेकिन वही अगर सामने वाला होगा तो इतना बड़ा डिस्टेंस होगा. समझ में आ रहा है? What exactly short dipole का मतलब? यानी स्टूडेंट्स शॉर्ट डाइपोल कभी होगा मालूम है? When point P is very far, then in that case your magnet is very small in comparison to that particular distance. ये सारे रिलेशन शॉर्ट डाइपोल के लिए जाते हैं. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स. yes Yes. कैन आई इरेज नाउ? so 1 minute.
Clear, students? Students, क्या करना है तुम लोग को? हुआ कि नहीं हुआ? So one more minute. हाँ? सर थोड़ा कॉपी डाउन कर रही हूँ. लास्ट एक छोटा सा रिलेशन है, नॉट विद द एंड ऑफ द चैप्टर. लेकिन फ्रेंड्स, अभी तुम्हें एग्जाम्स के हिसाब से देखना है तो उसके सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स गो थ्रू करना. आई डोंट नो अबाउट इट वेदर तुम्हारा करंट बोला सिलेबस है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट. लेकिन अगर तुम्हारे पास नोट्स है अपने सिनान्स के नोट्स, प्लीज गो थ्रू द बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, ओके, एंड प्रैक्टिस देम.
कर दो भी रेस। हाँ सर। Yes, sir. Okay, now students, it's only the last part we consider is कि what exactly your different diagrams we convert. Students, अगर हम देखते हैं ना, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स, अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है, तो हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ क्या है, सिंस अर्थ इज अ काइंड ऑफ अ मैग्नेट, बोला गया कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज जाइजेंटिक मैग्नेट है, ऐसा अजम्पशन है स्टूडेंट्स, जिसमें ये बोला गया है कि उसके अंदर एक मैग्नेट है, तो ये जो है वो अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेट है, यानी ये मैग्नेटिक साउथ है, ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है और मैग्नेटिक नॉर्थ है स्टूडेंट्स, इट्स लाइक दैट। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, यानी अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, तो बोलोगे सर बिकॉज ऑफ द ह्यूज जाइजेंटिक मैग्नेट। तभी जाके स्टूडेंट्स कोई भी अगर तुम मैग्नेट को फेस करोगे तो इट विल ऑलवेज फेस इन व्हाट, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। यस, व्हाई नॉट। अभी जब भी तुम्हारा एक्सिस देखो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट योर एक्सिस थ्रू व्हिच द अर्थ इज सेट टू रोटेट, यानी योर मैग्नेट इज एक्चुअली अलाइंड एट एन एंगल ऑफ व्हाट, at an angle which is almost we consider is less than 12 degrees we can consider, यानी ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा ज्योग्राफिकल एक्सिस हुआ, ठीक है, तभी जाके इस पॉइंट को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल साउथ, बट दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, बहुत छोटा एंगल, ये ध्यान रखना। यानी स्टूडेंट्स ये बोला गया है कि अर्थ ये अभी भी फैक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, अगर तुम कोई भी मैग्नेट लेते हो तो सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है कि नहीं रहता है, हाँ रहता है, तो उसका रीजन क्या है, ये फिजिसिस्ट को पूछा गया, तो कोई फिजिसिस्ट ने ये बोला है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है और उस अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ हमें साउथ पोल दिखाता है और अंदर का जो साउथ है वो हमें नॉर्थ पोल दिखाता है, यानी अर्थ का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज फेसिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। ज्योग्राफिकल एनजी का मतलब क्या हुआ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, आई एम पुटिंग इट ओवर हियर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज फेसिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ एंड ज्योग्राफिकल साउथ इज फेसिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस, ये है तुम्हारा ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये क्या होगा, a line passing perpendicular to it is called as magnetic equator, है ना, लेकिन परपेंडिकुलर, तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर कौन सा होगा, ये तुम्हारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। A plane passing through the geographical axis we consider is called as what, the meridian, geographical meridian. A plane passing through the magnetic axis is called as magnetic meridian. So yes, तुम्हारे simple definition which a student should keep in mind when you're learning about the Earth's magnetic field students. अभी फॉर एग्जांपल तुमने कोई भी कंपास नीडल अगर लिया स्टूडेंट्स, कोई भी कंपास नीडल लिया तो कोई भी कंपास नीडल तुम्हारा रेस्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, so it's always going to rest at an angle with respect to the Earth's magnetic field students. Okay, let us say that the magnet, the compass needle is aligned in this manner students. Okay, तो ये हम बताते हैं Earth's magnetic field, okay, जिसको मैं लिखूंगा B, यानी कोई भी कंपास नीडल हमेशा कैसे अलाइन होगा, Earth's magnetic field students. ओके, और ये तुम्हारा कंपास नीडल है, एग्रीड ना स्टूडेंट्स। ये जो कंपास नीडल है उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है ना स्टूडेंट्स, ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन टू इट, तभी जाके उसके ऊपर एक टॉर्क होता है,
तो यही जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कंपास नीडल अपना अलाइन हुआ ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैन आई रिजॉल्व दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इनटू टू कंपोनेंट्स? यस, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो एंगल है ना स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हें एंगल मिलता है, व्हाट एक्जेक्टली दिस एंगल आई कंसीडर विल बी, दिस एंगल आई कंसीडर विल बी एंगल ऑफ डिप, फी। फी स्टैंड्स फॉर व्हाट स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ डिप। ये है हॉरिजॉन्टल और ये हुआ वर्टिकल। The horizontal magnetic field, students. The horizontal magnetic field, students, is given by the formula. If you look into it, can I say I have to go for cos component, students? Students? Yes. So your BH will be equal to what? ये तुम्हारा B है, तो can I say B cos theta? Agreed? Yes. What exactly Yes. B vertical will be equal to? B sin theta. B sin theta. So what is the horizontal components of the Earth's magnetic field? It's BH and that is B cos theta. Vertical component is B sin theta. Can you find out the resultant? Yes. So that will be what? It's BV square plus BH square. How to find out direction? अगर किसी ने पूछा what is the direction of resultant? Direction of resultant का मतलब क्या हुआ? मैंने angle of dip पूछा है, तो can I say the answer will be tan P? What is that? Opposite upon adjacent. So what is phi? Tan inverse of dV by dH. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes. ये simple questions हो गए तुम्हारे पूछने के लिए. Now students, I just want to solve a few questions, students. Page number, the answers. Can anybody give me an answer for page number 227 of your textbook, students? Okay. Can you give me the answer for the first one? Okay. MCQ number 1. Okay. MCQ number 3. MCQ number 4. Can anybody give an answer for 1, 3, and 4, students, right now? Can you give an answer for that, students? पहला वाला आंसर दे सकते हो, students? Let R be the distance of a point on the axis of a bar magnet from its center. The magnetic field at R is always proportional to. Students, let R be a distance of a point on the axis of a bar magnet. Axis पे हाँ, from its center. The magnetic field at R is always proportional to. Is R directly proportional or inversely proportional? Formula मैंने क्या बोला था? B along the axis का formula क्या है? हाँ students, तो याद आ रहा है? B along the axis का formula क्या है? Short dipole के लिए. तो याद आ रहा है? B naught upon 4 pi 2m upon R cube. So can I say it's inversely proportional to R cube? Students, is it clear? Option will be B. Yes. अगर suppose मैं पूछूं third वाला, okay? The horizontal and the vertical components of magnetic field of the Earth are same. यानी BV is equal to BH. दिया है, दोनों equal है, students. Are same. At some place on the surface of the Earth, the magnetic angle at that place will be. तो phi क्या होगा? देखो ना, BV और BH दोनों same है, तो what is the angle of dip? इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? phi को क्या नाम दोगे? एंगल ऑफ dip. अगर BV और BH सेम है तो ये कैंसिल क्यों माना जाएगा स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज phi? Tan inverse of 1.
Students, can you tell me what is Forty- which angle? 45 degrees. Absolutely correct, Shubham. 45 degrees. Can you give me an answer for the third one? Third, that was the third one only. Fourth one, students. Inside the power magnet, the magnetic field lines are always from where to where? They are in the direction of South Pole to North Pole. Absolutely correct. South pole to north pole. Option is D. Yes. अभी the answer सुना students. Page number 226 पे देखो students. Page number 226 पे देखो. 226 पे जो 3 points दिया ना, they're very important. Left hand side पे. इसके नीचे ये जो derivation है ना, उसके नीचे देखो. और वही तुम्हारे MCQ में ही पूछा है students. At the magnetic north, अगर तुमने magnetic north लिया students, तो B is going to be directed upwards. BH is 0. Students, at magnetic north we consider any, अगर phi तुम्हारा 90 हो जाएगा students, अगर phi 90 हो जाता है, are you getting it? So what exactly sin of 90 will be 1? Where exactly needle will align along BB? समझ में आ रहा है students? अगर phi तुम्हारा 0 हो जाएगा, अगर सब तुम्हारा थीटा, सॉरी, ये B cos phi हो जाएगा students, ये B cos phi है और ये sin, ये ध्यान तो अगर तुम्हारा phi 0 हो गया तो cos of 0 1 हो जाएगा. Where exactly the magnetic compass needle is along the horizontal? यानी ये कहाँ पे बताता है? नॉर्थ पोल की तरफ बताता है. एग्री? अगर सपोज ध्यान से सुनना, ये 0 है, दैट इज 90. अगर मैंने 270 पे ले लिया, तो ये ध्यान में रखना, अगर मैंने ये थीटा को 90 लिया, सॉरी फी को 90 लिया या फी को 270 लिया, स्टूडेंट्स बता सकते हो कंपास नीडल कहाँ पे होगा? एवरीबॉडी, साइन ऑफ 90 क्या होगा स्टूडेंट्स? साइन ऑफ 90 क्या हो जाएगा? 1. तो कहने से कंपास नीडल नीचे की तरफ दिखाएगा, यानी हम अज्यूम करेंगे नॉट पे. देखो फी 90 आ जाएगा, बी की दिखाएगा. लेकिन अगर 270 होगा तो कहने से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, साउथ दिखाएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन? Yes, sir. क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो आंसर, तो आंसर भी साउथ. ये वाला क्वेश्चन दिया. थर्ड पॉइंट देखो, एनीवेयर ऑन द मैग्नेटिक ग्रिड सर्कल, मैग्नेटिक इक्वेटर, B is going to BH along the south to north, DV will be always equal to 0. यानी अगर सपोज मैंने कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल रखा स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज BV will be equal to 0, your phi will be 0 and cos of 0 will be equal to 1. So the magnetic compass needle is lying along the horizontal. Agreed? वहां पे तुम्हारा vertical component will be हमेशा 0 आएगा. Is this clear? Yes. Is this clear students? Yes, sir. Yes. और ये तुम्हारा MCQ नंबर कौन सा दिया है तुम्हारा? अगर देखोगे MCQ 5th वाला वैसे ही दिया, 5th और 6th वैसे ही दिया. Okay, can you give me the answer for the question number, students? First one, page number 228, fourth का first answer, students. Page number 228, fourth का first. Can you solve, students, everyone? चलो, ये erase कर दो students, पहले ये erase कर दो. Yes. Okay. Students, page number 228, fourth का first वाला करो. That's the last question. तुम अगर फॉर्मूला स्टूडेंट अगर ध्यान में रखोगे ना तो इजीली बी एबल टू क्रैक इट. A magnetic pole of bar magnet with pole strength दिया है. स्टूडेंट्स pole strength कितना दिया है? यानी स्मॉल m कितना दिया है स्टूडेंट्स? 100 एम्पियर मीटर दिया है ना. So a magnetic pole of bar magnet with pole strength is 20 centimeter away from the center of the bar magnet. यानी small r is given to you as 20 centimeter. The magnetic pole of a bar magnet with pole strength 100 ampere meters 20 centimeters away from the center of the bar magnet.
The bar magnet has a pole strength of 200 ampere meter. यानी ये मेरा given pole strength है. ये दूसरा जो pole strength है उसका जो pole strength दिया है 200 ampere meter and has a length of how much 5 centimeter and has a length यानी तुम्हारा magnetic geometric length is given to us 5 centimeter students. If the magnetic pole is on the axis of the bar magnet, magnetic pole is on the axis of the bar magnet. Find the force on the magnetic pole. You have to find out the force. स्टूडेंट्स ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ना वो मैग्नेटिक पोल के बारे में दिया है. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक पोल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर दिया है 20 सेंटीमीटर. A magnetic pole of a bar magnet with pole strength 100 ampere meter is 20 centimeter away from the center of the bar magnet. ये तुम्हारा given bar magnet है. Bar magnet has a pole strength. ये bar magnet का pole strength है. यानी स्टूडेंट्स ये बन गया तुम्हारा सोर्स. समझ में आ रहा है? और इस पे हो रहा है इफेक्ट. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दोनों ही बार मैग्नेट है लेकिन ये तुम्हारा सोर्स है. क्यों सोर्स है? इसका स्ट्रेंथ देखो 200 है यानी इसका फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. आया ना? इसकी फील्ड कंपैरेटिवली वीकर है. हाँ. इफ द मैग्नेटिक पोल इज ऑन द एक्सिस, ये जो मैग्नेटिक पोल है वो एक्सिस पे है ऑफ अ बार मैग्नेट, फाइंड द फोर्स ऑन द मैग्नेट. मैंने पूछा फोर्स पूछा है तो आ गया तुम्हारा फॉर्मूला. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अभी देखो इसी को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे देता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट. इफ आई गिव यू अ चार्ज प्लस क्यू हैविंग 20 coulombs, it has its own region around it. Friends, if I happen to give you a small charge of 5 microcoulomb placed at a distance of 10 centimeter, find out the force acting onto it. तो क्या फॉर्मूला था तुम्हारा? 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. आया ना? तो वैसे यहाँ पे मैंने फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया है देखो. मेरा पहला एक सेक्शन पूरा फॉर्मूला वाला था. तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू μ0/4 pi m1 m2 upon r square. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला. वहां पे मैंने m स्क्वायर लिखा था. मैंने देखा कि दोनों का स्ट्रेंथ बने से हमें दोनों का स्ट्रेंथ अलग हो गया. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. Yes, sir. μ0/4 pi की वैल्यू क्या है? 10⁻7. m1 का स्ट्रेंथ कितना है सर? 100. सो 10⁻2. m2 कितना है सर? 2 × 10⁻2 अपॉन r स्क्वायर सेंटीमीटर में है. कहना रहा हूँ जैसे मीटर 20 × 10⁻². मुझे क्या चाहिए? r स्क्वायर चाहिए. तो कहना है 20 स्क्वायर यानी 400 × 10⁻⁻4. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. यस सर. अभी देखो 2 + 2 4. 4 में से 7 गया तो कितना बचा? 10⁻³ × 2 अपॉन 4. एग्रीड? यस. एग्रीड? इनटू व्हाट? 10⁻² आ जाएगा. गेटिंग इट? तो ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 10 + 2 हो जाएगा. तो कहने से दिस विल बी 10⁻⁻1. सो 2/4 × 10⁻⁻1. एग्रीड? यस. Oh, very sorry. हाँ. एक सेकंड. जब गिवन द लेंथ, सो इस लेंथ दिया है. I did a mistake, students. Length of this is given to us 5 centimeters. Students, length is given to us 5 centimeter. So what exactly the distance of R we consider?
ये जो r 20 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये लेंथ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये जो r स्क्वायर है वो भी 20, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया ना स्टूडेंट्स, आया ना? हाँ तो 12 is equal to 5/6 times the geometric length, तो कहने से 25/6 सेंटीमीटर होगा, है ना? ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, आया ना? Yes. उसका आधा तुम्हें लेना है स्टूडेंट्स, तो ये कितना होगा 25/12, समझ में आ रहा है? तुम्हें जो डिस्टेंस लेना होगा वो 20 में से 25/12 को सब्ट्रैक्ट करके देन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। लेंथ दिया है तुम्हें 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, तुम्हें पूरा लेंथ नहीं लेना है, तुम्हें आधा लेना, और ये डिस्टेंस सेंटर से दिया है, तो वो जो डिस्टेंस है उसको तुम निकालो। आई गेटिंग इट? सो 20 में से इसको निकाल दिया तो तुम्हें सरफेस टू सरफेस आ गया। आर यू गेटिंग इट? Yes. लेकिन फॉर्मूला तो तुम्हारा क्या समझा नहीं मुझे। माय डियर? हाउ मच इज दिस हाँ। डिस्टेंस? Which is this distance? This is 5 centimeters. No, 5 centimeters is the entire length. हाँ वो हाँ ओके हाँ सर। तो 25/6 होगा, उसका आधा कितना होगा? 25/12। Yes. अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, ये पॉइंट से ये पॉइंट पूरा 20 है, हाँ? Yes. ये सेंटर है और ये नॉट था यहाँ पे, आया ना? हाँ ये कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये इसका आधा है, 25/12 होगा। yes. तो आई वांट दिस डिस्टेंस, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना, वो तुम्हारा आर बन। समझ में आया हाँ सर अभी समझा। स्टूडेंट्स? लेकिन स्टूडेंट्स जब भी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे ना, दे विल नॉट गिव यू सो मच कैलकुलेटिव, दे विल गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, यानी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा इजी वाले हो देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके? बट होप यू आर क्लियर विद इट। Since is the chapter clear to all of you all, students? Yes. Yes, sir. तो अभी लेक्चर के बाद में एक टैबुलर कॉलम है, वो मैंने दिया, टैबुलर कॉलम टेक्स्ट में भी दिया, उसको ध्यान से रेफर करना, जो फॉर्मूलाज मैंने दिए उसको ध्यान से रेफर करना स्टूडेंट्स, एंड गो टू द सॉल्व एग्जांपल्स आल्सो प्रॉपर, ओके? और अपनी सीईटी की बुक्स के अंदर तुम्हें एमसीक्यूज मिलते हैं तो उसके ऑड वन से प्रैक्टिस करो बस, ओनली डू ऑड वन, एक ऑड वन करोगे, टाइम मिले तो दूसरा करना, क्योंकि पूरा फिजिक्स तुम्हारा कंप्लीट करना। आर यू गेटिंग इट? तो सारे चैप्टर्स में से स्टूडेंट सारे ऑड वंस अगर हो सके तो एटलीस्ट 15-20 एमसीक्यूज ऑड वन सब में करो, जितने भी 4-5 चैप्टर्स हुए हैं, दैट विल हेल्प यू आउट, ओके? Yes, sir. नाउ व्हिच अदर टॉपिक हैज बीन स्टार्टेड, एनी ऑफ द टॉपिक्स व्हिच हैज स्टार्टेड फॉर यू ऑल? इसके बाद में कुछ शुरू किया है कॉलेज में, कुछ पता है दूसरे स्टूडेंट्स को क्या शुरू किया है? हाँ स्टूडेंट, नहीं सर। okay, so one thing now you can speak to Avinash sir, what exactly, okay,